Hello everyone, I'm back with another MCQ quiz series. So today we'll be solving some questions related to chapter number 1 of civics. The name of the chapter is on equality. Okay, so altogether there will be 25 questions in today's section. So let's start the quiz. The first question is, India has a democratic government and there are three key elements in any democratic government. All Indians above the age of 18 can vote in the general elections. This represents people's participation. So everyone has the right to get their problems resolved, and this is called the resolution of conflict. And the third one, giving freedom to individuals and a sense of fairness, is represented by the principle of dash. So you are supposed to choose the correct option, which will be filled in the blank over there. So the first option is freedom and money for all. Second is liberty and justice for all. Third is revolution for all. And fourth is war for enemies. Fourth option तो हो नहीं सकता है. I'm giving you 10 seconds. You all can write your answers in the live chat section. Live chat में लिखिए आप लोग answer. Okay. Do not just give one or two. Do not write the option numbers. 10 seconds are enough to type the whole option, the whole answer. Okay. So the 10 seconds have passed. The correct option or the correct answer according to me is liberty and justice for all. Okay. Liberty and justice for all. Let's check it. Yeah, we have got it right. So moving to another question, question number 2. India is a land of great diversity and there are people of different cultures living here together. India is also a democratic country. Okay, democratic मतलब होता है लोकतांत्रिक देश. It has a government for the people, of the people and by the people. ये डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है जो कि अब्राहम लिंकन ने दिया था. ठीक है, इन क्लास 9th, इन क्लास 8 आप लोगों को पढ़ना होगा ये. So which key feature of democracy influences all areas of the government's work? कौन सा की फीचर है डेमोक्रेसी का जो कि सारे एरियाज को इन्फ्लुएंस करता है, गवर्नमेंट के वर्क के सारे एरियाज को इन्फ्लुएंस करता है. ऑप्शन नंबर 1 इज इक्वालिटी, ऑप्शन नंबर 2 इज लिबर्टी, ऑप्शन नंबर 3 इज फ्रेटर्निटी, ऑप्शन नंबर 4 इज डिस्क्रिमिनेशन. बताइए, यू हैव 10 सेकेंड्स. इक्वालिटी मतलब होता है बराबरी, लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम टू डू एनी वर्क, फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव. तो ये कौन सा की फीचर है डेमोक्रेसी का जो कि गवर्नमेंट वर्क्स के हर एक सेगमेंट को इन्फ्लुएंस करता है. तो 10 सेकेंड्स हैव पास्ड. मेरे ख्याल से ये इक्वालिटी होगा. लेट्स चेक इट. या वी हैव गॉट इट राइट, इक्वालिटी ही है. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. Sarita is a domestic worker and during the general elections when she went to vote, she saw that many rich industrialists and famous doctors were also standing in the same line in which she was standing. So in this story, which feature of democracy is represented? इस स्टोरी में कौन सा फीचर डेमोक्रेसी का आपको दिख रहा है जो मैंने अभी डिक्टेट किया? बताइए आप लोग. इनजस्टिस दिख रहा है? बिल्कुल नहीं. इक्वलिटी दिख रहा है, लिबर्टी दिख रहा है, या डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है? डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं दिख रहा है, इनजस्टिस भी नहीं दिख रहा है. आप लोगों को बेसिकली मैंने हिंट दे दिया, दो में से आपको कुछ चूज करना है. ओके, 5 सेकेंड्स है पास्ट. थोड़ा और टाइम देता हूं. प्लीज राइट डाउन द होल आंसर. ओके ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे इक्वालिटी दिख रहा है. लेट्स चेक इट. या वी गॉट इट करेक्ट. बहुत आसान है ना, हम लोग सब कुछ करेक्ट कर लेते हैं बहुत आसानी से. Now, in our democracy, irrespective of what religion they belong to, चाहे वो किसी भी religion से belong करते हो, how much education they have had, कितना भी पढ़े लिखे हो, what caste they are from, किसी भी जाति से belong करते हो, और whether they are rich or poor, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सारे लोगों को वोट करने की अलाउंस है जनरल इलेक्शंस में. तो what is the common name for equal right and opportunities for all to vote? उसे क्या बोलते हैं? राइट टू वोट बोलते हैं, जस्टिस बोलते हैं, ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, या फिर यूनिवर्सल राइट बोलते हैं. राइट टू वोट सबके पास होता है, लेकिन इसका एक एग्जैक्ट नेम है डेमोक्रेसी में, वो आपको बताना है.
जिसमें सारे लोगों को वोट करने का अधिकार मिलता है एज सुन एज दे अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल का एज जैसे ही हो जाता है उनका, दे आर एलिजिबल टू वोट। बताइए क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी ये होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लेट्स चेक इट। या बिल्कुल सही। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज ऑफ who have written universal adult franchise in their answers. Now moving to next question, question number 6. So the idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, adult कौन होते हैं 18 साल से ऊपर के लोग, आप लोग अभी adult नहीं हो, आप लोग अभी minor हो, ठीक है, irrespective of their wealth or the communities, चाहे वो किसी भी community से belong करते हो, चाहे उनके पास कितना भी धन संपत्ति हो, they belong, okay, everyone gets a vote, means the right to vote and right to choose their government. So according to the idea of universal adult franchise, how many times in a general election can an eligible citizen cast a vote? एक eligible citizen कितने बार वोट कर सकता है, ये आप बताओ एक जनरल इलेक्शन में। तो एक जनरल इलेक्शन में एक एलिजिबल सिटीजन जो होता है वो सिर्फ एक बार वोट कर सकता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 और आंसर होगा 1, ठीक है। Yeah, we have got it right. ठीक है। So now moving to another question, question number 6. So India is a democratic country, एक लोकतांत्रिक देश है, and as per the Indian Constitution, everyone is equal before the law. सारे लोग कानून के सामने बराबर में हैं, मतलब इक्वालिटी मेंटेन रहती है। बट असलियत में इन व्हाट वे आर इंडियंस अनइक्वल? क्या आपको इंडियन सोसाइटी में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है? किस तरीके से, बताइए। इन देयर रूटीन लाइफ्स एंड जॉब्स, इन देयर राइट टू वोट, इन देयर राइट टू यूज पब्लिक प्लेसेस, या इन देयर राइट टू यूज रोड्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? आपके पास 10 सेकेंड है। मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इन देयर रूटीन लाइफ्स एंड जॉब्स। ओके, जॉब्स में इनइक्वालिटी रहती है और उनका रूटीन वर्क जो होता है उसमें इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। ठीक है, लेट्स चेक इट। बिल्कुल सही, हम लोग सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज गारंटी इक्वालिटी टू ऑल एंड येट इनइक्वालिटीज आर कॉमन। ठीक है, सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी तो करता है इक्वालिटी टू ऑल का, लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। इवन इन अ कल्चरली एंड स्पिरिचुअली रिच कंट्री, जैसे कि हमारा कंट्री है, कल्चरली और स्पिरिचुअली बहुत रिच कंट्री है इंडिया, तो विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, जो कि हर गांव और हर शहर में देखने को मिल ही जाता है हमारे देश में। आपको ये बताना, फूड हैबिट्स, डिस्क्रिमिनेशन इन द यूज ऑफ पब्लिक प्लेसेस, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन, या फिर द कास्ट सिस्टम। सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी किस चीज को लेकर के होती है हमारे देश में? बहुत इजी है इसका आंसर। द आंसर विल बी द कास्ट सिस्टम। ठीक है, सो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. द कास्ट सिस्टम इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ इनइक्वालिटी फाउंड इन मेनी सिटीज एंड विलेजेस ऑफ इंडिया. So which caste has traditionally been considered a low or inferior caste by many in India? कौन से कास्ट को लो या फिर इंफीरियर कास्ट कहा गया है हमारे देश में? ऑप्शन नंबर 1 इज दलित, ऑप्शन नंबर 2 इज ब्राह्मण्स, ऑप्शन नंबर 3 इज क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर 4 इज वैश्य। बताइए। ब्राह्मण तो हो नहीं सकता है, सबसे अपर कास्ट होते हैं वो। तीन में से आपको कोई चूज करना है एक। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, द आंसर इज दलित। दलित को इंफीरियर कहा गया है। Got it? So now question number 9. Even today, caste discrimination is common in many parts of India. In Indian society, Dalit is the term that is used for some castes considered socially lower. So what does Dalit mean? Dalit का असली मतलब क्या होता है? अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा ऑन इक्वालिटी का, ठीक है, तो वहीं पे मैंने समझा दिया था दलित का मतलब होता है ब्रोकन। ओके, ब्रोकन। इसका आंसर मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है, और बिल्कुल सही आंसर है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. सो रमेश is a Dalit boy from a small village. One day when he went to pray in a newly built temple, he was told not to go until the family of the Brahmin Sarpanch finished their prayer. सोच लीजिए,
दलित्स को टेम्पल में तब तक नहीं घुसने दिया गया जब तक ब्राह्मण सरपंच की जो फैमिली थी वो वहाँ पे प्रेयर कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। उसे बहुत बुरा लगा, ओके, एंड ही कंप्लेन टू हिज मदर, बट शी हैड नो एजुकेशन एंड नो आंसर टू हिज क्वेश्चन। वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, इलिटरेट थी, तो उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं था। व्हेन समवन इज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर, जब किसी के साथ में भेदभाव होता है कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर, जेंडर मतलब क्या होता है, लिंग के बेसिस पे भेदभाव हो गया, और उन्हें जब अनइक्वली ट्रीट किया जाता है हमारे सोसाइटी में, विच प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज वायलेटेड, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का जो वायोलेट किया जा रहा है? रिलीजन, देयर राइट टू एजुकेशन, देयर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, या देयर लैंग्वेज? रिलीजन तो डेमोक्रेसी का कोई प्रिंसिपल है ही नहीं। क्या हो सकता है बताइए? राइट डाउन द फुल आंसर। यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 3, their dignity and self respect. Okay, now question number 11. So question number 11, equality means the state of being equal in status, rights, opportunities in all possible ways. So people from castes considered lower are treated unequally and are discriminated against in many parts of the so-called democratic world even today. आज भी दुनिया के बहुत सारे कोने में लोअर कास्ट जिसे हम लोग बोलते हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। दिस इज अ नेगेटिव साइन बिकॉज पीपल इन डेमोक्रेसीज डोंट डिजर्व इनक्वालिटी, क्योंकि जो भी लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके जगह पे वो क्या डिजर्व करते हैं? व्हाट डू दे डिजर्व इंस्टेड ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन? क्या वो पॉवर्टी डिजर्व करते हैं? क्या वो रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी डिजर्व करते हैं? क्या वो अनलिमिटेड पर्क्स डिजर्व करते हैं, या फिर लॉलेसनेस डिजर्व करते हैं? अनलिमिटेड पर्क्स मतलब होता है कि सब कुछ फ्री में दे देना, तो ये भी सही नहीं है, नहीं तो फिर उन लोगों को आदत लग जाएगी सब कुछ फ्री में ही लेने का। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 11, पॉवर्टी, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, अनलिमिटेड पर्क्स या लॉलेसनेस? मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी होना चाहिए। लेट्स चेक इट, दिस इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, सो एवरीवन इन इंडिया एंजॉयज द राइट्स ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून की नज़र में सब बराबर हैं और सबके एक अधिकार भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, एक्सप्रेशन का, और पीसफुल असेंबली, मतलब अगर आपको कुछ कहना भी है तो आप पीसफुली कहिए, ठीक है? अगर आपको किसी कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करना है तो आप पीसफुली करिए, ठीक है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, और जो भी आपका फंडामेंटल राइट, सिविल राइट्स है, उसके लिए आपको एक अधिकार दिया जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये भी फंडामेंटल राइट का ही छठा राइट है, ओके? Sixth right of our fundamental rights which is given to all the Indian citizens, सारे भारतवासियों को फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है। वो 6 होते हैं, 6 में से छठे नंबर पे ये आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि उनके सिविल राइट्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, ठीक है? सरकार भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो विच फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइजेस एवरी इंडियंस डेमोक्रेटिक राइट टू इक्वालिटी? कौन सा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि इंडिया के हर लोगों की राइट टू इक्वालिटी को मतलब रिकॉग्नाइज करता है? अब बताओ, क्या वो गवर्नमेंट है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो प्रेसिडेंट है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन है? डॉक्यूमेंट है, जाहिर सी बात है, तो डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट तो डॉक्यूमेंट हो नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट भी डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है, प्रेसिडेंट तो एक पर्सन है, वो डॉक्यूमेंट तो हो ही नहीं सकते हैं। प्रेसिडेंट को एक बात याद रखिए आप लोग, किसी भी देश के प्रेसिडेंट को फर्स्ट पर्सन ऑफ दैट कंट्री कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, तो आप क्या बताओगे? तो प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, जो कि अभी कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं, ओके? श्री रामनाथ कोविंद जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज ओनली कंसीडर्ड द फर्स्ट पर्सन, ओके? तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4, तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा इसका, ओके? क्योंकि यही एक डॉक्यूमेंट है जो कि इंडियन लोगों की डेमोक्रेटिकली राइट्स को, जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स है सबको ये रिकॉग्नाइज करता है। Now, question number 13. The French word parler means to speak or discuss. And a democracy is nothing but an equal platform for all to discuss and resolve their problems and issues. So, in a democratic country like India, all the people vote in general elections and elect their leaders in the government.
Then these elected leaders and ministers meet and discuss the problems of the people they were elected to represent. So what is that place where they meet to discuss such matters of national importance called? उसे हिंदी में हम लोग संसद भवन भी बोलते हैं, ओके, एंड इट इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया. संसद भवन से आप लोगों को पता चल ही गया होगा. बताइए क्या है इन चारों ऑप्शन में से. लाइव चैट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं इसका नाम. सो इट इज ऑप्शन नंबर 1 द पार्लियामेंट. पार्लर ये एक फ्रेंच वर्ड से निकला है. पार्लर, पार्लर से पार्लियामेंट बना है, ठीक है. पार्लर का मतलब होता है बैठ करके डिस्कस करना. दिस इज अ फ्रेंच वर्ड, ओके. So we have got it right. Now question number 14. So India is a democratic country and its preamble includes modern qualities like equality, fraternity, liberty. अब ये preamble क्या होता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीफेस, हर एक किताब का एक प्रीफेस होता है, एक टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है. तो उसी तरीके से जो हमारा भारतीय संविधान है, जो ये प्रियम्बल है, इसका फर्स्ट पेज है, देखोगे आप वी द पीपल ऑफ इंडिया करके लिखा हुआ रहता है. आपके एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट पेज में भी मिल जाएगा आपको द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो दिस इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजीज और वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं जो कि आपको समझना होगा. इसमें कुछ वर्ड्स हैं, इक्वलिटी मतलब बराबरी, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, लिबर्टी मतलब कुछ भी काम करने की आज़ादी. ये सब वर्ड्स में मेंशन है, ठीक है. आप लोग कभी पढ़िएगा इसे. So according to the principle of equality and justice for all, who can use public wells, tanks, bathing ghats, and roads and public networks such as mobile, radio, TV, internet, etc. बताइए क्या वो पुअर सिटीजन्स के लिए भी होता है, फार्मर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, एनीवन हु इज लीगली एलिजिबल. क्वेश्चन नंबर 14. 10 सेकंड है आपके पास में, जल्दी से टाइप करिए आंसर. सभी के लिए है ये मैं हिंट दे रहा हूँ. सो इट विल बी आंसर ये ऑप्शन नंबर 4, एनीवन हु इज लीगली एलिजिबल. Okay, we have got it right. So moving to question number 15. All citizens in democratic countries are equal before the law and no discrimination can be practiced on the basis of caste, religion, gender, race, etc. So what has been abolished by the government in recent years and its practice is a punishable crime. Punishable crime है. क्या है बताइए. क्या वो कास्ट है, क्या वो अनटचेबिलिटी है, क्या वो रिलीजन है, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन है. डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट पे तो कोई भी पनिशमेंट अभी ऐसे नहीं है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन के लिए तो है, मगर गवर्नमेंट ने पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया है, ओके, खत्म कर दिया है अनटचेबिलिटी. ओके, ये अनटचेबिलिटी होगा. छुआछूत मतलब पहले लोग इनफैक्ट जो भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे वो अगर किसी अपर कास्ट के लोगों में सट भी जाते थे तो बोलते थे कि अछूत है, इसमें सटना भी गुनाह है, इनका कुआं अलग होगा, ये हमारे गांव के अंदर में नहीं रह सकते हैं. मीन्स दे वर मार्जिनलाइज्ड बाय द सोसाइटी. मतलब हमारा जो सोसाइटी है इन लोगों को मार्जिनलाइज कर दिया था. मार्जिनलाइज का मतलब ये होता है कि हमारे सोसाइटी के अंदर में इनकी कोई जगह नहीं है, इनको बाहर भेज दिया था. आज भी आप गांव में देखोगे, किसी किसी बड़े बड़े गांव में जहाँ पे आपको अपर कास्ट के लोग रहते हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि उस गांव के अंदर इन लोगों को आने की मनाही रहती है, ठीक है. ऐसा होना नहीं चाहिए. ये अकॉर्डिंग टू लॉ दिस इज नॉट गुड और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग भी डरते हैं और ये लोग अभी तक अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आप लोगों के सामने भी अगर ये कहीं प्रैक्टिस हो रहा है तो आप इसको अपोज करिए, ठीक है. मैं तो इतना ही कहूँगा. Now, next question. There are two ways in which the government implements the principle of equality guaranteed in the Constitution, through laws and through government programs and schemes. So, whom are those schemes designed for? ये जो schemes होते हैं गवर्नमेंट की, किसके लिए डिजाइन होते हैं? वेल्दी क्लास लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए, अपर कास्ट के लिए. तो कास्ट से गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, पहली बात है. तो ऑप्शन नंबर 2 तो होगा ही नहीं. या मिडिल क्लास के लिए होता है या फिर डिसएडवांटेज पीपल के लिए होता है. तो ज़्यादातर जो भी स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट डिजाइन करती है वो किसके लिए हो सकता है, ये बताओ आप. मेरे ख्याल से ये आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग लिख सकते हैं. डिसएडवांटेज पीपल के लिए होता है. जिन्होंने भी डिसएडवांटेज पीपल लिखा है, कांग्रेचुलेशंस टू देम. Now moving to question number 17. The government of India has launched many schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally. Okay, जितनी भी communities unequal treatment से झेल चुकी हैं उन लोगों के लिए for many centuries, कई सौ साल से होते आ रहा है. जब से ये वर्ण सिस्टम बना है तभी से ये इनइक्वालिटी जो है वो
लोअर कास्ट के लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो दी स्कीम्स, ये जो स्कीम्स है, are designed to ensure more equal opportunities for people who have not had them in the past. So which program was introduced in all government elementary schools to promote education and provide children with a nutritious lunch? तो एक nutritious lunch के लिए और elementary schools में attendance को बढ़ाने के लिए, education को promote करने के लिए कौन सा स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? These are some of the schemes which are given in the option. आप लोग बता सकते हैं। नेशनल सर्विस स्कीम था वो, ये सर्विस से रिलेटेड है, तो इससे फूड का और न्यूट्रिशन का कोई लेना देना नहीं है। मिड डे मील स्कीम या इंदिरा आवास योजना, ये घर से रिलेटेड है। और एक है नेशनल लिटरेसी मिशन प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में से आपको कुछ चूज करना है, दोनों में से कोई एक। आपके पास 10 सेकेंड है। तो मेरे ख्याल से ये होगा ऑप्शन नंबर 2, द मिड डे मील स्कीम। ओके, मिड डे मील स्कीम ये सबसे पहले एक स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब ये स्कीम लाई थी। अब ये कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है। ओके, या चलिए, तो मिड डे मील स्कीम जो है वो गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में सबसे पहले तो न्यूट्रिशियस फूड बच्चों को मिल सके, इसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। प्लस अटेंडेंस जो है, यानी कि बच्चों के अंदर में बच्चों का एक मूड ऑफ अट्रैक्शन था कि बच्चे स्कूल की तरफ खींचे चले आए। चलो पढ़ाई के लिए नहीं तो खाने के लिए तो कम से कम आए, जिनसे इनका क्या हो जाएगा, इनका हेल्थ कंडीशन, जो भी न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होती होगी, जो भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है इन द ग्रोथ पीरियड ऑफ द स्टूडेंट्स, वो उनको मिल सके। ठीक है, तो उनका न्यूट्रिशन का भी ध्यान रख लिया जाएगा और साथ साथ उन्हें पढ़ा भी दिया जाएगा, कुछ एजुकेटेड भी बना दिया जाएगा। कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन तो मिल ही जाएगा। अभी एलिमेंट्री स्कूल क्या होता है, ये बेसिकली क्लास 8 तक कहीं होता है। ओके, तो क्लास 8 तक की एजुकेशन को हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। जैसे अभी आप लोग क्लास 7 में हो, तो यू ऑल आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ओनली। गॉट इट? तो ये मिड डे मील स्कीम जो है, ये सबसे पहले कौन से स्टेट में इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे देश में, बताओ? गुजरात में इंट्रोड्यूस हुआ था, झारखंड में इंट्रोड्यूस हुआ था, केरला में इंट्रोड्यूस हुआ था, या फिर तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस हुआ था? बताइए, राइट डाउन द नेम ऑफ द स्टेट। तो मेरे ख्याल से ये तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस हुआ था। लेट्स चेक इट। यहाँ बहुत कंफ्यूजन रहता है केरला और तमिलनाडु में। ओके, लेकिन तमिलनाडु इज द राइट आंसर। Okay, now moving to question number 19. In 2001, the Supreme Court in India, okay, asked all the state governments to introduce the midday meal scheme in all elementary schools. So this program has had many positive effects. Children have begun enrolling and regularly attending school, and caste prejudices have become less because both lower and upper caste eat the meals together. तो बचपन से ही इनके अंदर से ये जो कास्ट सिस्टम का जो कुरीतियां हैं, ये जो दुष्प्रभाव है, इस दुष्प्रभाव को कम करने की भी कोशिश है। तो मिड डे मील स्कीम अगर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया जाए तो ये बहुत सारे मतलब अच्छी अच्छी वैल्यूज को बच्चों के अंदर में इम्प्लीमेंट करता है। सबसे पहले तो उनका न्यूट्रिशन लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, मतलब अब और खास करके अगर ग्रोइंग ईयर्स में अगर उनकी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या फिर वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, अगर उन्हें न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फूड मिल रहा है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। फिर पढ़ाई के खाने के साथ साथ में उनको पढ़ाई भी अच्छी मिल जाती है वहाँ पे। पढ़ाई के साथ साथ में उन्हें क्या मिल जाता है, भाईचारा, जो फ्रेटर्निटी है, ये जो भेदभाव होता है लोअर और अपर कास्ट के बीच में, ये चीज़ उनके दिमाग में आएगा ही नहीं बचपन से। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन बिहार में और यूपी में ये उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो पा रहा है, बट द स्टेट गवर्नमेंट आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। लेकिन ये करप्शन जो है, ऊपर से लेकर के नीचे हर तबके के लोग एक तरीके से करप्ट हैं। ठीक है, बिहार में और यूपी में भी, जिसके वजह से ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। और भी बहुत सारे स्टेट है, सिर्फ बिहार और यूपी का ही नाम नहीं लूँगा मैं, बट जो भी हमारे सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ ये काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि जो मिड डे मील स्कीम जो है वो सदर्न स्टेट्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया हुआ है। ठीक है, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काफ़ी अच्छे से काम करती हैं, लेकिन यहाँ पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हाथ में नहीं दिया हुआ है। ओके, इसीलिए ये सही से हमारे राज्यों में, हमारे खास करके जो नॉर्दर्न इंडिया के जो भी राज्य वगैरह हैं, वहाँ पे काफ़ी उतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। ओके, तो इन विच अदर वे डिड दिस स्कीम हेल्प द चिल्ड्रेन? तो
और ये किस तरीके से हेल्प करता है, ये तो लोअर और अपर कास्ट के बीच में जो दूरियां हैं इसको कम कर देता है, प्लस साथ साथ में क्या ये गरीबी मिटाता है, क्या ये गरीबी बढ़ाता है, क्या ये हेल्थ को इम्प्रूव करता है, या फिर ये हंगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करता है। सबसे पहले ये हंगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करता है। कम से कम बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे ना घर पे, न्यूट्रिशन वगैरह तो सब कुछ साथ में मिल ही जाएगा, लेकिन भूखा तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही इंडिया हंगर इंडेक्स रेशियो में, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रेशियो है इसमें इंडिया 103rd रैंक पे है, सोचो, यानी कि 102 कंट्रीज हंगर इंडेक्स में हमसे काफी बेहतर है। सोचो 102 कंट्रीज, इंडिया कहाँ पर है। चलो, तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब, वाज एन इंडियन जूरिस्ट, ठीक है, पॉलिटिशियन भी थे, फिलोसोफर भी थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे और इकोनॉमिस्ट भी थे। सोचो इतनी सारी पढ़ाई इन्होंने कर रखी थी। ही वॉज ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड, उनका बहुत बड़ा योगदान था भारत के संविधान को बनाने में। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमिटी, ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी था हमारा संविधान का, उसके ये चीफ थे, हेड थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तो नहीं, लेकिन ड्राफ्टिंग कमिटी के ये हेड थे। एंड ही इज आल्सो नोन एज व्हाट, फादर ऑफ द नेशन। ये जो गांधी जी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, ये टाइटल नहीं दिया गया इनको। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ पार्लियामेंट, क्या है ये दोनों में से बताओ आप लोग। चलो 5 सेकेंड। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर को हम लोग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ओके, या आई गॉट इट राइट। सो आप लोगों को अभी सही हुआ होगा। दिस इज वेरी इजी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21. The Civil Rights Act was passed in the USA in 1964 and it made it illegal for Americans. Americans भी देखो रंग के बेसिस पे, कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे भेदभाव किया करते थे, तो उसके लिए सिविल राइट्स मूवमेंट पास हुआ था 1964 में। ओके, जो अफ्रीकन अमेरिकन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके खिलाफ। बट इवन टुडे अफ्रीकन अमेरिकन whose ancestors were brought from Africa as slaves, जिनके जिनके पूर्वज अफ्रीका से लाए गए थे अमेरिका एज अ स्लेव, कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर, आज भी वो लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि अमेरिका जो कि इतना विकसित कंट्री, इतना डेवलप कंट्री है, आज भी कहीं ना कहीं उनके साथ में थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो ही जाता है। तो ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट है, ये जो एक इतना बड़ा मैसिव मूवमेंट बना, तो इसकी शुरुआत किसने की थी, ये आप बता सकते हैं? क्या वो रोजा पार्क्स थी, क्या वो मैरिलिन मोनरे थी, क्या वो इंदिरा गांधी थी? इंदिरा गांधी तो हो ही नहीं सकती। क्या वो हिलरी क्लिंटन थी? हिलरी क्लिंटन तो अभी के टाइम में है। बताओ आप लोग। इसकी शुरुआत बेसिकली रोजा पार्क्स ने की थी, ठीक है। ये एक बस से ट्रैवल कर रही थी, मैंने ये कहानी आपको बताया था जब हम लोग लेक्चर पढ़ रहे थे, तो ये चैप्टर जब हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे थे तब। सो ये रोजा पार्क होंगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। नाउ next question, a revolution in the 1960s against the unequal ways in which African Americans were treated came to be known as the American Civil Rights Movement. Okay, so after a long and violent struggle, the US government passed the Civil Rights Act of Dash. यहाँ पे कौन सा साल में ये पास हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। अब सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में और क्या दिया हुआ है, एंड मेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन इलीगल, ठीक है। यूएस गवर्नमेंट ने भी इलीगल करार दे दिया, आप रंग के भेद पे, आप रेस के भेद पे, रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन से साल में पास हुआ था ये सिविल राइट्स एक्ट? 1962 में, 55 में, 1964 में या 1960 में? पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था इसका आंसर होगा 1964। ओके, चलो सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, रोजा पार्क्स वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट whom the United States Congress called the first lady of civil rights, ठीक है, and the mother of the freedom movement. Whom was the civil rights movement in America initiated by Rosa Parks aimed against? तो ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट जो रोजा पार्क ने शुरू किया था, ये किस चीज के अगेंस्ट में किया था? अगेंस्ट का स्पेलिंग वहां गड़बड़ है, तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। बताइए। डिस्क्रिमिनेशन बाय नेटिव अमेरिकन, क्या नेटिव अमेरिकन उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, या अफ्रीकन अमेरिकन तो वो लोग खुद थे तो वो डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा। या फिर डिस्क्रिमिनेशन बाय द पुअर लोग कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, या गवर्नमेंट खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी? बताइए क्या होगा। जो भी गोरे लोग थे, नेटिव अमेरिकन, वो लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चेक कर लेते हैं। चलिए बिल्कुल सही। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट।
The Indian Constitution is the longest constitution in the world with 448 articles in 25 parts and 12 schedules. So, which article describes provisions for prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth? बताइए कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये सब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लिखा हुआ है? बताओ। आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 16C, आर्टिकल 12 या आर्टिकल 15? ये आर्टिकल 15 है। इस पे एक बहुत अच्छी सी मूवी भी आई हुई है आयुष्मान खुराना की, आप लोग एग्जाम के बाद देखना, ठीक है? अच्छी सी मूवी है। सो आर्टिकल 15 विल बी द करेक्ट आंसर। या वी हैव गॉट इट राइट। चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। In Judhan, the author has described his personal experience of being discriminated as a Dalit boy. ये एक दलित बॉय की कहानी है, ऑटोबायोग्राफी है, एक तरीके से उन्होंने खुद ही लिखा है। This autobiography shows how people from the so-called lower caste were treated unequally and unfairly. So who is the author of this autobiography? Basically ये बताना है कि ये जूठन है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है? बताइए। महात्मा गांधी की है? नहीं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है या इंदिरा गांधी की है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की? बताइए किसकी है? 10 सेकेंड्स आपको दिए जाते हैं इसके लिए। आपको पूरा आंसर लिखना है, बताइए। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने पूरा कर लिया, ये भी सही निकला। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोग सभी को पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, 2-3 बार देखिए, अच्छे से समझिए हर चीज को, हर एक पहलू को बहुत डीपली पढ़िए। गॉट इट? क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है, ठीक है? आप लोग एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करोगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मैं आपको कुछ और फैक्ट्स भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है? कुछ फैक्ट्स मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। जस्ट बी ऑनलाइन, आप लोग कहीं जाइए मत। वो फैक्ट्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। गॉट इट? या जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग सबको ये फैक्ट्स पता होना चाहिए। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फैक्ट, ओके? और इस चैप्टर से रिलेटेड जो आज हम लोगों ने एमसीक्यू डिस्कस किया, इस चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स ऑन इक्वालिटी एंड चैप्टर नंबर 10 ऑफ सिविक्स स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी की वीडियो लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनका ये, ठीक है? और हम लोग मैंने एक प्लेलिस्ट भी तैयार करके रखा है क्लास 7 एनसीईआरटी का, तो आप उसे भी बहुत अच्छे से देख सकते हो। उसमें सारे के सारे वीडियोस, एमसीक्यू वीडियोस, एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर सब कुछ डाले हुए हैं, ठीक है? आप 1 बाय 1 करके उन्हें देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए और इसका आप बहुत अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यू हैव टू लर्न दिस, ओके? बिकॉज क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड फ्रॉम ऑल दिस। गॉट इट? चलिए, फिर दूसरे लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। गॉट इट? ओके देन, keep liking the channel, keep supporting the channel. Thank you very much. Take the screenshot. चलो, जय हिंद everyone.